Hello, good morning, everybody. My dear guys, how are you? I'm wishing you all are best, all must be best, all must be good. Under this epidemics, actually, we all are what we can say the working efficiency we all are getting inactive due to coronavirus. Okay, leave this. And today we have to discuss some point which are very important for your UPSC and PCS examination because this episode mainly based on the base of public service commissions. Is it okay? So my dear guys, in this episode I am going to discuss only 3 topics. Those are very important for you for different examinations, especially for public service commissions. Is it okay? So first topic is United Nations Convention Against Corruption, UNCAC. Second topic is called United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC. And third one is called Petroleum and Natural Gas Regulating Act, Regulating Board, PNGRB. Okay, only 3 topics we have to discuss here, and 3 topics are very much more and more we can say useful for your PCS examination. Is it okay? So my dear guys, first I am going to discuss about UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. I think you might have heard. अब आप इस नाम से भी समझ गए होंगे कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू नो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन. दिस इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यह यूनाइटेड नेशन की एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है. इट वाज लॉन्च एंड एक्सेप्टेड ऑन 31st October 2003 by the members of United Nations. In that time, 140 the members of United Nations were present. Is it okay? And in the presence of 140 members of United Nations, finally United Nations Convention Against Corruption it was accepted. But it came in effect since 2005. लेकिन इसकी जो प्रभाव होती है 2005 से होती है. My dear guys, this is the world's first lawful universal corruption treaty because the activity of this institutions and organization has the motto to prevent from different types of corruptions which are mainly involved. Okay, and to avoid from the corruption, this has the mainly a strategy and to make the policy. Is it okay? To find out if we are going through the UNCAC under these sections, we have to discuss some centered points which are mentioned and which are we can say primarily and priority given in this episode. Okay, so in this episode only 5 centered points we have to discuss here. Like number first is called it also protects from corruption. तो ये हमारा UNCAC जो होती है हमारे क्या करता है करप्शन से सबसे पहले किसी को भी बचा लेता है. इज इट ओके? एंड टू मेक लॉस इम्प्लीमेंट देना और कानून भी बनाती है करप्शन के अगेंस्ट में और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है. इज इट ओके? एंड इट इज एन इंटरनेशनल कॉपरेशन रिलेटेड टू सेक्टर्स. ओके, तो ये जो है हमारा एक इंटरनेशनल कॉपरेशन से भिन्न भिन्न सेक्टरों से क्या होती है रिलेट हो जाती है. एंड फोर्थ वन समटाइम्स अदर इट आल्सो हेल्प्स टेक्निकल. ओके, एंड टेक्निकली इट कैन आल्सो गिव द असिस्टेंस. तो जब कभी भी हमें एक टेक्निकल समस्या का जब समाधान की जरूरत होती है तो उस समय क्या होता है UNCAC जो होती है टेक्निकल मदद भी करती है. इज इट ओके? एंड फाइनली वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द 5 सेंटर्ड पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट एक्सचेंजेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो इसकी काम जो होती है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम होता है. इज इट ओके? वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द गोल्स, व्हाट इज द गोल्स, इसका आखिर गोल्स क्या है? तो माय डियर गाइस, फर्स्ट वी हैव टू नो इट हैज गोल्स एंड अदर गोल्स आल्सो. ओके, and we have to discuss both which are more important for our examination because in the examination we can go through that question can be implemented before you about the goals and other goals which types of can be implemented. Is it okay? So according to goals, if we are going through to its goal to reduce various types of corruption, तो इसकी सबसे पहला जो काम है या जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो करप्शन होती है, ठीक है, उस करप्शन को इसकी कम करना ही एक दायित्व होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इज इट ओके? दैट कैन अकर अक्रॉस कंट्री बॉर्डर्स. जो कंट्री के आसपास के जो बॉर्डर होती है, कंट्री के बाहर वाली जो बॉर्डर होती है, वहां पर भी इस तरह के करप्शन फैलते हैं. सच एज वी कैन से ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस एंड एब्यूज ऑफ पावर. तो जहाँ कभी कभी क्या होती है शक्तियों का दुरुपयोग हो जाना, कभी कभी क्या होती है कि ट्रेडिंग की जो इन्फ्लुएंस होती है उसको या तो बढ़ा देना या तो घटा देना. एज वेल एज द करप्शन इन द प्राइवेट सेक्टर्स.
यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन हो जाती है. इज इट ओके? लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द embezzlement and money laundering. So those are the interpretation, those are the part of we can say corruption. This can be controlled, this can be also whenever it can be caught red-handed and realized about the spreading highly. In that period, different rules and regulations can be made and implemented against these types of corruptions. Okay, whenever we are going through the other goals, okay, it has also power to strengthen the international law enforcement, okay, and judicial cooperation between countries by providing effective legal mechanisms for the international asset recovery. तो क्या होती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय लॉ होती है उसको भी इन्फॉर्मेंस करने में मजबूती प्रदान करती है. साथ ही साथ जो हमारे पास एक न्यायिक जो कॉपरेशन होती है, न्यायिक कॉपरेशन है जिसको हम जुडिशियल कॉपरेशन बोलते हैं, तो जो कंट्रीज के बीच में होता है इसको भी ये प्रोवाइड एक इफेक्टिव वे में प्रोवाइड करती है, जिससे कि एक लीगल मैकेनिज्म का जन्म होता है और जिससे कि एक हमारा इंटरनेशनल जो एसेट्स ट्रीटी होता है उसको हम कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करने में हमें इसकी मदद हो जाती है. जी ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारी टॉपिक समाप्त होती है. अब हमारी दूसरी टॉपिक जो होती है वह UNODC होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. माय डियर गाइस, सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है दिस वाज नॉट, ठीक है, तो ये सबसे पहले तो था ही नहीं. ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या था, ये किसके नाम पर रीनेम हुआ, जस्ट वी हैव टू नो. So whenever we are going through the United Nations Office on Drugs and Crimes, UNODC, actually it was established in 1997 in Vienna, Austria. ठीक है, तो इसकी स्थापना 1997 में वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था. ओके, एंड व्हाट वाज द मोनोपोली या व्हाट वाज द मोटो बिहाइंड इट दैट इट वाज established. तो कारण क्या थे, कारण को आप जानिए. इट वाज फाउंडेड एज यूनाइटेड नेशंस, या यू कैन से इट वाज फाउंडेड एज यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल. तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो हुई थी कि ड्रग जो होती है, जो इसको हम लोग मादक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए इसका स्थापना किया गया था. ठीक है, एंड क्राइम प्रिवेंशन, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो क्राइम होती है, दंगा फसाद इत्यादि होते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सके. ठीक है, बाय कंबाइनिंग यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया कि इन्होंने इंटरनेशनल आप कह सकते हैं, इन्होंने ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम को भी इन्होंने लॉन्च किया. ठीक है, एंड क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिविजन्स in United Nations office at Vienna, and finally it was established in Vienna, okay, to identify, to consider different we can say challenges which are confirmly we can say concerned with drugs. Okay, so how to prevent and how to control these types of we can say challenges, mainly controlled by UNODC. Is it okay? And whenever we are going through the extraordinary of the expressions that its parent organization mean to say some we can say sub-divisional offices. Okay, तो इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट. ओके, तो इसकी जो पेरेंट आप कह सकते हैं, जिसकी ऑर्गेनाइज या इसकी ब्रांच जो कह सकते हैं, ठीक है, या ये जिसके ये पार्ट है, ऐसे भी आप कह सकते हैं. ये हमारा यूनाइटेड नेशंस जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय जिसको कहते हैं, उसी का यह एक पार्ट है. दैट्स वाई वी कैन से इट इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप. इसीलिए एग्जाम में आपसे पूछ सकता है किसकी ग्रुप है, तो आप कह सकते हैं कि यह UNDG का ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का एक मेंबर्स है. ठीक है, एंड इट वॉज रीनेम्ड इन 2002, और इसको 2002 में इसको रीनेम कर दिया गया एज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स. ठीक है, और इसको उस समय जो था यानी 1997 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो यह UNDG का एक रूप के या उसका एक मेंबर के रूप में आया था. ठीक है, लेकिन इसको 2002 में इसकी नाम जो था बदल दिया गया, बदल कर करके UNODC कर दिया, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका नाम बदल कर करके कर दिया गया. इज इट ओके? तो इस आधार पे आपका सेकंड टॉपिक समाप्त हो जाती है. थर्ड टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारा इंडिया से होता है, जो हमारा PNGRB की बात हम करते हैं. PNGRB का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटिंग बोर्ड. इज इट व्हाट? तो जो हमारा PNGRB था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटिंग बोर्ड, it was established in our country by PNGRB Act 2005.
तो ये PNGRB एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी अंदर PNGRB एक्ट इन 2006 विथ अ स्पेशल गैजेट ऑन 31 मार्च 2006। तो यह एक हमारी सरकार की एक PNGRB एक्ट 2005 के तहत इसको 2006 में लाया गया था, स्थापित की गई थी, और यह एक स्पेशल गैजेट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इज ओके। इसकी जो आप कह सकते हैं इसकी जो वर्क्स होती है, ठीक है, व्हाई इट वाज लॉन्च, तो इसका जो मेनली वर्क होता है वो होता है टू मेक अ स्टेबल ट्रेड रिलेशंस अमंग कंपनी। तो भिन्न भिन्न जो हमारे देश में कंपनियां हैं वे सारे कंपनियां के बीच में एक स्टेबिलिटी, मतलब वो बिजनेस करें, ट्रेड करें, लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ करें, यह कह सकते इस्टेब्लिश करना, एक रिलेशन को स्थापित करना ही इसका सबसे बड़ा एक जिम्मेवारी होती है। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि टू इंश्योर अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। तो गैस को लेकर के बाजार में एक कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है वो आपका लेजिस फेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कल्याणकारी कहते हैं। ठीक है, जहां पर ऑटोनोमस जो होती है, ठीक है, और तो उस तरह की जो विचारधाराएं होती है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि पूरी मार्केट में, ठीक है, जो एक कंपनी एक दूसरे कंपनी के बीच में जो एक कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव की जो बात होती है, ठीक है, इसको ये स्थापित करता है, जिससे कि न तो कोई बहुत ज्यादा किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते या कर सके और न ही कोई काला बाजारी कर सके। इज इट ओके। ब्लैक मार्केटिंग से भी ये करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स बाय कॉम्पिटिटिवनेस। तो माइनस सी बात, जब कॉम्पिटिटिवनेस होगी, जब प्रतियोगिता का एक फॉर्म हो जाएगा कि ठीक है भाई हम इतना रुपया में देंगे, उन्होंने कहा चलो हम इतना ही में दे देंगे, तो इसमें क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर के जो होती है वो प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होती है कि मार्केट की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि एक हम कह सकते हैं चाहे वो हमारा लोअर क्लास फैमिली हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे मिडिल इनकम फैमिली हो। ठीक है, उस सभी को क्या होता है एक बराबर और एक कह सकते हैं न्यायोचित यानी जुडिशियल फॉर्म में उनको क्या होती है इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके, एंड वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द एक्स्ट्रा, इट ऑल्सो रजिस्टर्स कंपनी। तो भारत में जो भिन्न भिन्न गैस से रिलेटेड जो कंपनियां आती है, नया नया जो ओपन होने की बात करते हैं, ठीक है, वे सारे को जो रजिस्ट्रेशन की बात होता है वे सारे को हमारा PNGRB ही करता है। ठीक है, एंड इट आल्सो ऑथोराइजेस कंपनी, और कंपनियां को एक क्या करती है ऑथोराइज देती है, अधिकृत करती है, या कह सकते हैं अधिकार भी देता है कि ठीक है भैया आप इस तरह के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट अनाउंसेस अ फॉर्म ऑफ लीगल एंड जनरल अफिलिएशन फॉर पाइपलाइंस। ठीक है, तो यह एक पाइपलाइन, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं हल्दिया से इलाहाबाद की जो पाइपलाइन भारत में चली है गैस वाला, ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हमारे देश में होता है, तो ऐसे जो पाइपलाइन बिछाने के काम होती है तो उनके लिए चाहे वो लीगल हो, चाहे वो हमारा जनरल एफिलिएशन हो, यानी आप मान्यता कह सकते, ठीक है, तो उसके भी अनाउंसमेंट करने का जो काम होता है वह PNGRB का ही करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट आल्सो इंश्योर्स अबाउट सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो ये क्या करती है, पेट्रोलियम की एक जो सफिशिएंट एक बहुत अधिक मात्रा में जो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको ये अवेलेबल कराता है। साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितने हैं, नेचुरल गैसेस कितने हैं, उसका कहाँ पर कितना इस्तेमाल होगा, कहाँ पर क्या प्रोडक्ट है, कहाँ पर कितना उसका कंज्यूम होगा, क्या उसकी कितनी डिमांड होगी और भविष्य में इसकी क्या डिमांड होगी, दीज इंटरप्रिटेशंस कैन बी कंप्लीटली स्टोर्ड या कलेक्टेड बाय PNGRB। ठीक है, तो ये सब PNGRB के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, एक नोट कर लीजिएगा, इसमें एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो PNGRB है तो इसके अगेंस्ट क्या क्या होते हैं। तो याद ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अपील जो होता है PNGRB के अगेंस्ट में, जैसे मान लीजिए PNGRB भी कोई गलती करती है ना, या कहीं कहीं मान लिया जाए कि ये भी इनसे भी कोई अनऑथराइज्ड कार्य हो जाता है, इनलीगल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में इसके अगेंस्ट में हम कहाँ पर केस दर्ज करेंगे, इसके अगेंस्ट में हम कहाँ पर कंप्लेन दर्ज करेंगे। ठीक है, तो जस्ट पॉइंट मस्ट बी नोटेड दैट अपील अगेंस्ट PNGRB बिफोर इलेक्ट्रिक अपील अथॉरिटी। तो इसका जो अगेंस्ट में जो कह सकते हैं क्लेम किया जाता है, ठीक है, तो एक क्लेम जो होती है वह इलेक्ट्रिक अपील अथॉरिटी के सामने होती है। और बात होता है कि सर इलेक्ट्रिक अथॉरिटी अपील या इलेक्ट्रिक अपील अथॉरिटी क्या होती है, तो इसका स्थापना जो हुआ था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत भारत में इसकी स्थापना की गई थी। इज इट ओके। अब इसका प्राइमरी कुछ फंक्शंस भी होते हैं PNGRB का, जैसे हम कह सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस, इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड रेगुलेशंस ऑफ रिफाइनिंग, ठीक है,
तो सबसे पहले रिफाइनिंग के रेगुलेशन करने के लिए एक अथॉरिटी देती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बताती है, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, सप्लाई एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैसेस। ओके, तो दीज इंटरप्रिटेशंस आर कंप्लीटली हेल्ड अंडर दीज सेक्शंस। इज इट ओके? तो मुझे लगता है कि आपको हमने 3 टॉपिक भी बताया, जो था हमारा UNCAC, फिर था हमारा UNODC और थर्ड हमारा जो था PNGRB था। ठीक है, तो ये तीनों आपको जो टॉपिक्स हैं तीनों का तीनों हमारा UPSC में पूछा हुआ है। आई थिंक ये लेक्चर आपको मोर एंड मोर बेनिफिशियल्स होंगे, हेल्पफुल होंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इंडियन प्लानिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, जिससे कि बार बार एग्जाम आप देखते होंगे पूछता है कि इंडिकेटिव प्लानिंग किसको कहते हैं, है ना। जैसे आपको क्वेश्चंस में आता है कि प्राइम क्या होता है। तो इस तरह के जो मेन आइडियोलॉजिकल जो वर्ड होते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल वर्ड होते हैं, बहुत सारे हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्म दे देते हैं, पूछता है कि चलो भैया ये किस इकोनॉमी या किस स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में आते हैं। तो उस सारे चीज़ों को मैं अगले एपिसोड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।